As you can see, the bike looks bigger than because highway is enough, right? He literally said that because I drive a KTM, so he knows it does enhance the performance. As you can see right over here, it is my friend's bike. This is the Royal Enfield Continental GT650, and in today's video we are going to be covering the type of modifications done on the bike. And by the way, first glance at the bike, you can see how cool it looks. All right, my friend Adi, thank you so much for giving me the bike for the proper review. And I did talk about in the previous video that I'll tell you guys about the modifications in this one. So here it is the entire in the video. Now there's a ton of stuff done on the bike. क्या क्या है वो आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है. बाकी बाइक दिखने में बहुत ख़तरनाक लगती है. बहुत सारे इस पे लोग लोग एक्चुअली रोकते हैं एंड पूछते हैं कि आपने क्या करवा रखा है वगैरह वगैरह. मुझे पर्सनली कल भी बहुत बार लोगों ने पूछ लिया कि बाइक पे क्या क्या करवा रखा है, जबकि मेरी बाइक नहीं है, बट आई नो क्या क्या हो रखा है, तो आई कैन ईजिली टेल यू गाइज. बाकी बाइक पे टोटल खर्चा हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको. इट इज़ अराउंड 1 लाख के आसपास ऊपर से हो रखा है. एंड आप बोलोगे नहीं दिख रहा है इतना, बट इंटरनल भी चेंजेस है, ठीक है. नो परफॉर्मेंस मोड्स, ECU ट्यून नहीं हो रखा है, तो वो ही इज़ थिंकिंग अबाउट डूइंग दैट इज़ वेल. जब वो हो जाएगा उसकी वीडियो फिर लेके आएंगे. बट अभी जो बाइक आपको दिख रही है, दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू कैन एवर वॉन्ट. नाउ मेन थिंग जो मुझे लगी बहुत बेटर इसमें वो ये है कि भाई पहली बात तो सिंगल सीट बाइक है, ठीक है. सीट चेंज हो रखी है, सिंगल सीट है, काउल लगा हुआ है एंड अलॉयज़ चेंज है, ठीक है. एज यू कैन सी अलॉयज़ चेंज है. ये अलॉयज़ जो है ना बाइक में, ये भाई बहुत अच्छा लुक देते हैं. पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आए द ब्लैक अलॉयज़. दे लुक very much better, and the tank part with the exhaust goes all hand in hand. And those yellow cables, they are by NGK. If I know, they are Tokyo Iridium cables, जितना मुझे आइडिया है. So let's take the bike out and I'll tell you guys about everything. क्योंकि इसकी पूरी लिस्ट थी, शायद मैं पूरी वीडियो में देख ली थी, पुरानी वाली वीडियो में देख ली थी. So yeah, why not? उससे पहले I'll take you guys on a quick tour of the cinematics for the bike, because why not? तो बाइक में बहुत कुछ आता है. सबसे पहले जो बाइक में आता है वो है आपका हिमालयन टेल लैम्प, LED indicator bulbs, single seat, PPA for 5 years, tank pad, NGK spark plugs, NGK iridium plugs, BMC air filter, SSP exhaust, alloys OEM, radiator guard, sump guard, crash guard, fog lamps, flash X hazard, GPS, black intake covers, carbon dipped heel guard, rear brake oil guard, random stickers, side stand extender, trip machine brake receiver caps, phone holder, air filter plate Enki designs, center stand, engine oil fill cap and suspension finishers. Too much. So whenever I ride this bike, I honestly feel super good because how comfortable the bike is for the city. More than the Duke, not really because of the posture. But if you want to travel like 10, 20 kilometers, 30 kilometers, 40 kilometers every single day, it's a very good bike. Thumbs up to my guy Aditya for this well maintained bike. You can obviously see the aura that the bike has. Oh, that's nice. अगेन बाइक को नहीं लीन करना है दिव्यांश. Why not? The bike looks super good, super clean as you can see. देखो
बाइक के लुक्स मैटर करते हैं राइट. दोनों बाइक्स द ड्यूक 390 एंड दिस पर्टिकुलर बाइक दे बोथ लुक सुपर गुड. दिखने में बहुत अच्छी है राइट. द थिंग इज़ रॉयल एनफील्ड इज़ बेसिकली ए बाइक जो बहुत सारे आजकल के बॉडी बिल्डर्स ले रहे हैं बिकॉज उनको लगता है मसल्स दिखाना एंड ये बहुत कूल लगता है एंड इट एक्चुअली लुक्स कूल राइट. सो अगर आप बाइक ले रहे हो उस पर्पज़ के लिए आपको शो ऑफ करना है तो बाइक बहुत प्यारी है. सिंगल सीट और अच्छी लगती है with certain stickers, modifications and all. The bike looks absolutely phenomenal because yeah. Now फिर से as I told you guys about the exhaust note, Stallion के exhaust बहुत loud है यार. I think I personally prefer these ones over the Red Roosters because I think ये loud है, बहुत clear है, bold आवाज़ है. Even though I think pops and bangs उसमें ज़्यादा आते हैं on stock, no tuning whatsoever, no straight pipe. But this on the other hand feels very good. It feels very lively. Now अगर आपको अपनी बाइक करवानी है ऐसी, if you want your bike to look like this, then आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अराउंड 50 से लेके 60,000 के आसपास. ठीक है, 50 to 60 दैट्स द इंटायर रेंज. बाकी बाइक आपको मिलती है 4,20,000 की ऑन रोड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट दैट. सब मिला के इतना खर्चा तो बाइक में आएगा ही आएगा इफ़ यू वॉन्ट योर बाइक टू लुक दिस कूल. And I totally had fun with the bike. My father had fun with the bike and we enjoyed the bike and the reactions on the bike is crazy. अब I don't really record reactions तो वो अलग बात है. But हाँ, as you can see that guy who did the thumbs up, you can tell how much aura the bike has. Bike भी तो किसकी है. Also, right over here written custom build for Aditya Mittal, April 17. एंड रॉयल एनफील्ड की बैजिंग हो रखी है. आई थिंक मैंने जय श्री राम भी देखा था यार, बाइक में लिखा हुआ था जय श्री राम. कहाँ मुझे दिख नहीं रहा यार एट दिस पॉइंट. आई थिंक वो इनग्रेव था कहीं, वो सच में नहीं दिख रहा है. आई गेस मैंने देखा था बट हाँ, प्रीटी कूल बाइक भाई. ये अभी ये आधा था, अब ये फुल हो गया है. तो बाइक में अगर पेट्रोल होगा भी ना तो दिखाएगी कि पेट्रोल नहीं है. सो दिस इज थिंग दैट हैपन्स ऑन द बाइक्स ऑफ रॉयल एनफील्ड. थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी क्लस्टर वगैरह तो ट्रेडिशनली है, इतना कुछ भरा हुआ नहीं है. एनालॉग या डिजिटल नहीं मिलता आपको एक्सेप्ट फॉर दिस छोटू सा प्यारा सा. ठीक है, एंड ये बटन मिलता आपको, दैट्स इट. देखो हमें कौन मिले हैं, हमारे बाइकर भैया, बाइक ऑन स्टेरॉइड. अपनी बाइक धुलवा रहे हैं, एकदम मेंटेन कर रखी है बाइक. बाकी गाइस मैंने ग्लव नहीं पहने हुए थे, ये मेरे ग्लव नहीं, इनके ग्लव है बिकॉज बाइक न्यू है एंड आई डोंट रियली वांट टू वेयर ग्लव्स ऑन बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तमीज़ से. इशू थोड़े आते हैं बाइक में चलाते हुए. अगर आप नई बाइक चला रहे हो आफ्टर एक्चुअली ट्राइंग टू राइड योर बाइक वेरी ऑफ्टन, तो नई बाइक चलाते हुए थोड़ा सा लगता है, दिक्कत आता ही है. इसलिए मैं विदाउट ग्लव्स बाइक चला रहा हूँ. क्या किडनी विडनी बेचो यार, एक जाए वो लो सूट, रेसिंग सूट. किडनी विडनी बेच के डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस एंड वांट्स. तो जो इस बाइक में वो रखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं मिलती आपको. सो दैट्स इट. ओह या, आई एम गोना मेक सम ASMR ऑफ द माउंटेन्स जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा बिकॉज वी हैव द बाइक फॉर अ डे एंड व्हाई नॉट टू हैव सम फन विद इट.